Hello everyone, and today we are going to learn about functions. In this session we'll learn about how can we return values from the function, what do you mean by a scope of a variable, and how to pass an array or list to a function. Now the function returning values from the function. Now function may or may not return a value. On this basis we can categorize the functions into two types. One is the functions which are returning some values and another one is function which are not returning any value, that is void function. So जो function return करते हैं उसे हम कहेंगे नॉन void function, सॉरी जो function value return करते हैं उन्हें कहेंगे नॉन void function, जो functions value return नहीं करते हैं उन्हें हम कहेंगे void function. Now the very first one, that is the functions which are returning some value. क्या होना चाहिए, फंक्शन के सबसे लास्ट में एक स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास में, रिटर्न अलोंग विद अ वैल्यू. नाउ दिस वैल्यू कैन बी अ लिटरल, इट कैन बी अ वेरिएबल, इट कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑल्सो, राइट. जो भी कंप्यूटेड वैल्यू होगी, जो भी फंक्शन उस पर उसकी फंक्शन बॉडी में परफॉर्म कर रहा होगा, उसके कंप्यूटेड रिजल्ट को ये रिटर्न कर सकता है. और ऐसे फंक्शंस जो वॉइड फंक्शंस है, जो कुछ रिटर्न नहीं करते, सो दे विल टेक द फॉर्म एज रिटर्न ओनली, they don't have any value along with it. Right, let's understand this thing with an example. यहाँ पर हमने एक sum function लिया है. We are passing two values x and y. X and y are parameters. S equal to x plus y, and we are returning the sum s. रिटर्न कर रहे हैं. जब हम फंक्शन कॉल करेंगे, सो फंक्शन कॉल करेंगे तो जो वैल्यू सम रिटर्न कर रहा है उसको हम कलेक्ट कहाँ कर रहे हैं, RES में. ठीक है, हम पास क्या करें 3,6, तो 3 will get copied into x, 6 will get copied into y. It will calculate the sum of 3 and 6 as a 9. It will return the value 9 and this 9 value get collected into RES. So this is the sum value. Sum is a function which is returning some value. Now redefine this function sum in which we are not returning anything. So again we are defining one sum function with x and y as parameter. We are calculating the sum. We are printing the sum here itself and then return without any value. So this time when we call the function, we don't have to collect any value. So on the left hand side of sum, we don't have any variable here. We can simply call sum 3,6. So what will happen? 3 get copied into x, 6 get copied into y. हमने कैलकुलेट किया सम और ये जो वैल्यू आई है वही प्रिंट हो गई 9 और यहाँ से हम रिटर्न कर गए. तो रिटर्न कर गए तो इसका नेक्स्ट जो भी फॉलोइंग स्टेटमेंट होंगे वहाँ से आपका कंट्रोल फ्लो करेगा. Now returning multiple values from a function, a very unique feature of the Python. ऐसा हमने कभी किसी पहले लैंग्वेज में नहीं देखा होगा. So Python lets you to return more than one value from a function. हम Python के किसी function से एक साथ एक से ज़्यादा value return कर सकते हैं. Right? So here what we are doing, we are defining a function cal. We are passing two parameters and we are performing 4 types of operations with this x and y: addition, subtraction, multiplication and division. And whatever we are performing here, we are returning the 4 values a, b, c, d. So we are having the these four values get returned from the cal function. Now इसको रिसीव करने का तरीका क्या होगा, जब हम इस कैल को कॉल करेंगे. सो या तो तरीका है कि हम इसको एक सिंगल वेरिएबल में कलेक्ट करें t. सो व्हाट विल हैपन दैट t विल बिकम अ टपल. इन दिस केस जो भी वैल्यूज यहाँ से रिटर्न होंगी वो सारी कहाँ आ जाएंगी, t नाम के एक टपल में आ जाएंगी. सो यहाँ पर जैसे हम वैल्यू पास करें 5 और 2, तो 5 वैल्यू होगी x की, 2 विल गेट कॉपीड इनटू y. ये a b c d कैलकुलेट होगा. a will be having value 7, b will be having value 3, c will be having value 10 and d will be having value 2.5. ये वैल्यू सारी रिटर्न हुई a b c d और ये सारी कहाँ आ गई, t में, और t बन गया एक टपल. और अगर इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से करें, दैट ऑन द राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस कैल फंक्शन वी आर राइटिंग r1, r2, r3 and r4. So we are having 4 values on the left hand side. So what will happen, that whatever the cal is returning a tuple, it will get unpacked into this 4 variables. So r1 will be having a value a, r2 will be having value b, r3 में c की वैल्यू आ जाएगी और r4 में
डी की वैल्यू आ जाएगी। और जब हम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, सो इन दिस वे द आउटपुट विल बी देयर। Scope of a variable will decide that in which part of a program a particular piece of a code or data item would be known and can be accessed therein. It means that कि एक वेरिएबल का स्कोप, इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम या वो एरिया ऑफ अ प्रोग्राम जहाँ पे ये वेरिएबल नोन है, एक्सेसिबल है, वही उसका स्कोप है। इसको समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप किसी सिटी के बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को विजिट करने जाते हैं, तो हर मॉन्यूमेंट्स के लिए आपको एक डिफरेंट टिकट खरीदना पड़ता है। वो पर्टिकुलर टिकट उस मॉन्यूमेंट के लिए ही वैलिड होता है। उस टिकट से आप दूसरे मॉन्यूमेंट को विजिट नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं कि वो टिकट जो है उसका लोकल स्कोप हो जाएगा। उसका स्कोप कैसा है, लिमिटेड है, उस पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट के लिए ही है। और सपोज करिए आपने कोई गोल्डन पास ले लिया। उस गोल्डन पास की फैसिलिटी ये है कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट में चले जाएं, आपको सिर्फ गोल्डन पास दिखाना होगा, आपको किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होगी। सो नाउ दिस गोल्डन पास इज हैविंग अ ग्लोबल स्कोप। आप इसे पूरे सिटी में यूज़ कर सकते हैं फॉर विजिटिंग एनी मॉन्यूमेंट। So in a similar way, we are having two types of variables here. One is a local variable and global variable. Local variable मतलब वो वेरिएबल जिससे हम सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, विच आर ओनली एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। ऐसे वेरिएबल्स को हम लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। लोकल वेरिएबल उसी टाइम क्रिएट होते हैं जब हम फंक्शन को विजिट करते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जब फंक्शन टर्मिनेट हो जाता है। इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दैट वी आर डिफाइनिंग वन फंक्शन हियर, डेफ सम एक्स वाई. So what is this xy? Xy are the formal parameters. So these are the local variables of this sum function. इनका स्कोप कहाँ से कहाँ तक होगा? इनका स्कोप जिस पॉइंट पे ये डिफाइन हो रहे हैं, मतलब इस लाइन से लेके एंड ऑफ द फंक्शन तक, इसके बाद में ये x और y जो है वो अननोन होंगे। यहाँ पे एक और वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं s. So these three variable x, y and s, these three are the local variables. While the global variables का मतलब वो वेरिएबल्स विच आर डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन, किसी भी फंक्शन के बाहर जो हम डिफाइन करते हैं वो होंगे आपके ग्लोबल वेरिएबल, एंड दे आर सेट टू हैव अ ग्लोबल स्कोप, जैसे कि हमारा गोल्डन पास था। सो यहाँ पर हम नंबर 1, नंबर 2 और RES, ये तीन वेरिएबल्स जो है वो किसी भी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हैं। सो these three variables will be having a global scope and they will be termed as global variable. Till now what was happening here, that if the local and global variables are having a same name, then local variable hides the global variable within the local scope. फाइन, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ था, दिस एग्जाम्पल वेयर वी आर हैविंग अ फंक्शन जिसमें एक a equal to 5 and a equal to 15. We are having the two different variables here. One is a local a and another one is a global a. Fine. इसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। अब क्या हुआ, अब हम ये चाहते हैं कि हम इस ग्लोबल a को इस फंक्शन में एक्सेस कर पाए। ये इसको अलग से लोकल ट्रीट ना करें, ये इस ग्लोबल वेरिएबल को ही यहाँ पर फन फंक्शन में एक्सेस कर पाए। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, विल राइट डाउन वन स्टेटमेंट हियर एज ग्लोबल a. As soon as we'll write down this statement, what does it tell? What will happen? It will tell the Python that don't create a local variable a for this for this a. Don't create a local variable a. Instead of that, use the global variable a. Now this a which is outside the function and which is inside the function, they are not different. They are the same a. Fine. So what will happen? How the flow of function will be there? सबसे पहले a की वैल्यू होगी 15, यहाँ पर a की वैल्यू को ये प्रिंट करेगा 15। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं हम गए, हमने कहा ग्लोबल a. इट मीन्स दैट हमने पाइथन से बोला कि आप कोई लोकल वेरिएबल क्रिएट मत करो a के लिए, a विल बी द सेम ग्लोबल वेरिएबल।
उसी a की वैल्यू को हमने क्या कर दिया यहाँ पर 5. So instead of local now it becomes a global. Fine. So it will printing the value as 5. फिर यहाँ से जब हम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न करके हम आएंगे इस वाले स्टेटमेंट पर, और इस वाले स्टेटमेंट पर हम प्रिंट ए करेंगे तो इस बार ये कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा, 15 की 5. इट विल प्रिंट इट एज अ 5. क्यों? क्योंकि आप ये ए और ये ए कोई अलग ए नहीं है, वही सेम ए है. पहले वैल्यू 15 थी, फंक्शन में जाके उसी ए की वैल्यू हो गई 5, और बाहर आकर उस ए को जब हम एक्सेस करें तो वो भी क्या होगी 5. और जब हम इसे रन करें सो ये प्रिंट हो रहा है 15, 5 एंड 5. नाउ पासिंग अरे और लिस्ट टू अ फंक्शन. हम किसी फंक्शन में अभी तक जो कर रहे थे वो एक सिंगल वेरिएबल्स पास कर रहे थे. अब हम बात करेंगे किसी लिस्ट को कैसे पास कर सकते हैं. लिस्ट को ही हम अरे भी कहते हैं. फाइन. So let's take an example. I have defined one function here, sum. Fine. This a is a parameter. Now this a, when I'm calling this sum and I'm passing a y. What is this y? Y is a list. जब हम लिस्ट पास करते हैं तो हम लिस्ट पास कर रहे हैं तो ये y लिस्ट किस में गई, a में. So now this a is a list. S is having a value 0. When I'm running a loop as well for I in a, so what does it will return? For the first time I will be having value 5, then I will be having value 2, then I will be having value 4, then I will be having value 7. और इन सारी वैल्यूज़ को हम सम में s में प्लस प्लस करते जा रहे हैं. सो एट लास्ट व्हेन यू विल कम आउट ऑफ द लूप s will be having sum of all these values, right? And this is we are calling sum of y. When we run the program we'll get a output as 18. अब इसी को समझने के लिए थोड़ा और एक्सटेंड करें. चलिए एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, जब हम लिस्ट पास करें तो इस लिस्ट में एक वैल्यू अपेंड हो जाए. ठीक है. सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम. write down this program, write down this new one. Now I'll write down one function here as a app, and I'll pass one list here a, right? And what I'll write down as a dot append. I'll take one of the value from the user. First of all, x equal to int input, then enter value to be appended, right? And then I'll write down as a dot append. I'll call the append method of the list, and I'll append a value x into, and then return a. Similarly, the same list I have taken as 5, 2, 4, 7. Now this time I am calling ap, and my parameter, actual parameter is y, and it is returning something. That's why again I'll take it into q equal to, and I'll print the value of q. Right. So this is, we are having, this is the top level statement. These three are the top level statements, right? The execution will start from this statement. First of all, the original list was 5 to 4, 7. We are calling ap, we are passing y will get copied into a. So ये जो a है इसमें हमने एक वैल्यू अपेंड कर दी x जो हमने यूज़र से ली थी, और इसको हमने रिटर्न कर दिया. ये a जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको हमने कलेक्ट किया q में, और यहाँ पर हमने q की वैल्यू को प्रिंट किया. इसे रन करें. Enter the value to be appended, let it be 88. So we'll be having, now the list will be having as 5, 2, 4, 7, 88, this way. Now one more question. Now what we have to do, we have to find and write the output of the following code. We are having one of the check function.
Again, the two parameters are there. They both are having the default values. N1 is having default value as 1, N2 is having default value as 2. We are adding them. One more statement is there, and then we are printing the value of N1 and N2. Now these are the three calls for this check statement. पहले हम कॉल कर रहे हैं check without any parameter, then we are calling check with two parameters 2,1, and third time we are calling check with only one parameter. चलिए एक एक करके डिस्कस करें. सबसे पहले चेक को बिना पैरामीटर के हमने कॉल किया. जब हम बिना पैरामीटर के कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा, n1 की वैल्यू, n1 और n2 की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही कंसिडर होगी. n1 की वैल्यू होगी 1 और n2 की वैल्यू होगी 2. यहाँ पर n1 इक्वल टू हो जाएगा n1 प्लस n2, दैट इज़ 3. n2 की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, दैट इज़ 3. एंड व्हेन विल प्रिंट n1, n2 विल गेट आउटपुट एज 3, 3, 3 एंड 3. सेकेंड टाइम अगेन व्हेन वी आर कॉलिंग चेक विथ 2,1, सो क्या होगा, इस बार आपने जो वैल्यू पास की वो ओवरराइट कर जाएंगी इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को. मतलब अब n1 की वैल्यू होगी 2, n2 की वैल्यू होगी 1. दिस टाइम n1 प्लस n2, n1 की वैल्यू, n1 विल बी हैविंग वैल्यू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, n2 की वैल्यू हो जाएगी 2, और इस बार जो हमें प्रिंट होगा वो क्या हो जाएगा, 3 एंड 2. जब हम चेक को कॉल करेंगे सिर्फ एक ही पैरामीटर के साथ में 3, तो ये 3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, द वेरी फर्स्ट पैरामीटर दैट इज n1. दूसरे की वैल्यू आपने पास नहीं की तो वो क्या ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा. सो n1 की वैल्यू होगी 3, n2 की वैल्यू होगी 2. यहाँ पर n1 की वैल्यू हो जाएगी 5, n2 की वैल्यू हो जाएगी 3, और इस बार प्रिंट करेगा वो 5 और 3.